Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Miss Noreen, Miss Shazia Noreen. Today, once again, I'm over here to teach you Urdu. Kashif Urdu, grade 4 and Nardaban Urdu. Yesterday, I told you about the books. I show the books in front of you that it's a Nardaban and it's Kashif. कल हमने काशिफ उर्दू का एक लेसन पढ़ा था. Today, inshallah, we will हम दोनों को complete करने की कोशिश करें. Before that, I'm going to discuss about syllabi. Syllabi outline, Kashif Urdu, we have first from 6th chapter, chapter number 1, Hum, Burai Ka Anjam, Naat, Behan Ho To Aisi, Pakistan, it's a poem, Asman Se Parchiyan Barsi. It's all about first term syllabi. And in final term syllabi, second term syllabi, again we have 6th chapter, Achhi Ghiza, Pani Hai Zindagi, Kude Ka Ghar, एक बड़ा इंसान, लालच बुरी बला है, बदलते मौसम. It's all about Kashif Urdu. And in Nardaban Urdu, in first term, we have page number 1 to 15. Then again page number 21 and 20 and 21. For the second term, we have pages 27 to 37, 40 to 50, 52 to 53, 65 to 67. कल जो हमने लेसन पढ़ा था, it was related to फातिमा जिना, मोहतरमा फातिमा जिना, बहन हो तो ऐसी. Just wait, मैं दो बच्चे आए उन्हें जरा एडमिट कर लूं. जी, फातिमा जिना के बारे में और उनके भाई कायदे आजम के बारे में. You can see the very gorgeous picture of Qaid Azam and her sister Fatma Jinnah. बहन हो तो ऐसी की हमने पेज नंबर 22 पे एक्सरसाइज की थी. अल्फाज के मायने लिखे. You had done. आप लोगों ने ये काम कर लिया. Yesterday I was share with you. कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था. Wave me, मुझे wave करके बताएं. Have you done in your notebook? Good. The next work was जुमले बनाए. इज्जत, शदीद, बुलंदो बाला, पाबंदी, जिम्मेदारी, दिन रात का काम. It's also done by yourself. Okay, good. I also shared the fill in the blanks with you. ये कुछ fill in the blanks मैंने share की थी कल आपके साथ. ये भी आप लोगों ने I hope के notebook में कर लिया होगा. That's great. Yes. Today the exercise which we are going to in the class. It's question answers. Question answers हमारे पास है. मोहतरमा फातिमा जिना अपने भाई का किस तरह ख्याल रखती थी. We have many options, many answers. You can write by your own answer, but my answer is that मोहतरमा फातिमा जिना हर वक्त भाई के साथ रहती थी. वो भाई की सेहत, उनके खाने पीने और हर जरूरत का बेहद ख्याल रखती थी. Is question number 1. You can solve these questions in your notebook. You can see this exercise on book page number 20. On Kashif book page number 20, you can see the question answers. Question number 2. जब पाकिस्तान बना तो एयरपोर्ट पर उतरते वक्त कायदे आजम के साथ कौन था? जब पाकिस्तान बना तो एयरपोर्ट पर कायदे आजम के साथ उनकी बहन फातिमा जिना थी. ठीक है? 2 questions. You can see the question number 3. All of you mute your mics. सब बच्चे अपना mic mute करें. Okay, that's great. I don't want to hear your voice. During explanation, I want a pin drop silence. Question number 3. कायदे आजम इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान में किस लिबास में आए? आप जब पाकिस्तान आए तो आपने शेरवानी और जिना कैप ली हुई थी. कल मैंने आपको बताया था कि जिना कैप कैसी होती है और शेरवानी भी पूरी शो की थी इन फ्रंट ऑफ यू. पाकिस्तान पहुंचने के लिए मोहतरमा फातिमा जिना ने कैसा लिबास पहना? उन्होंने सादा लिबास पहना था. कायदे आजम ने अपनी बहन की खिदमत गुजारी के बारे में क्या कहा? कायदे आजम ने कहा, अगर मेरी बहन ना होती तो मेरी परेशानियां बहुत ज्यादा होती और मेरी सेहत ज्यादा खराब होती. मेरी बहन मेरे लिए रोशनी की किरण की तरह है. See the question number 6. अगर कायदे आजम की बहन इनका साथ ना देती तो क्या होता?
अगर कायदे आजम की बहन उनका साथ ना देती तो कायदे आजम के लिए मुश्किलात और परेशानियां बहुत ज्यादा होती। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने किस स्कूल से तालीम पाई? मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कॉन्वेंट स्कूल से तालीम पाई, अंग्रेजी तालीम पाई। Now you can see the next slide, Nardaban Urdu. I will share these questions with you and you will solve these in your own Kashif Urdu page number on book page number 22. आपके साथ मैं ये शेयर करूंगी, आप book page number 22 पे ये solve करें. Now you can see the next slide of Nardaban Urdu, first from page number 1 to 15 and page number 20 and 21. जी, you can see in your Nardaban Urdu में page number 6 देखिए. Do you have Nardaban Urdu? Check out your books, hurry up quickly. मिस जी बोलिए. मिस मेरा ना बुराई का अंजाम नहीं हुआ और नाट नहीं हुआ कॉपी में. Okay, you can call me separately during class. No need to discuss extra. कोई एक्स्ट्रा बात करने की जरूरत नहीं है. जो चीज आपकी रह गई है, वर्क कंप्लीट नहीं है, you have to call me. I will entertain you. Yes. Right now you can see the page number 6. पेज नंबर 6 पे आपके सामने है वाहिद जमा. You have to solve in your own book. Okay? आपको ये अपनी बुक में करने हैं. पेंसिल की जमा है पेंसिलें, मिसालें. मेरे समाया हुआ है. ये आप माइक क्यों नहीं ऑफ कर रहे हैं? म्यूट करें. ईशा फजल, you don't have manners to attend the class. जूती, जूतियां, कोठी, कोठियां, बात, बातें, मोती, मूर्ति, मूर्तियां, रात, रातें, शिकायत, शिकायतें, नेकी, नेकियां, गहराई, गहराइयां, घाटी, घाटियां, कोशिश, कोशिशें, हिकायत, हिकायात, औरत, औरतें, चोट, चोटें, अलमारी, अलमारियां, टांग, टांगे, बीमारी, बीमारियां, कसम, कस्में, रस्म, रस्मात, जबान, जबानें, अबारत, अबारतें, रोशनी, रोशनियां. We have 24 words meaning. You can see on the slide. आप slide में भी देख सकते हैं और I will share the book page with you. मैं आपको book भी share कर रही हूँ पेज भी, आप यहाँ भी देख सकते हैं. ये आपने करना है पेज नंबर 6. पेज नंबर 6 करना है. Then see the next page, page number 7. It's also your homework. ये भी आपका homework है जो कि आपको करना है. इसमें आपने करना क्या है? जुमले बनाए. हसन ने एक दिलचस्प वाकया सुनाया. इसका आपको सेंटेंस बनाना. मेक सेंटेंसेस. परिंदा बाग में चहचहाता है. तालिबे इल्म ने इनाम हासिल किया. नंबर 4, वो मेरे मशवरे पर अमल करता है. नंबर 5, अली ने मकान बनाया. नंबर 6, माली ने नया पौधा लगाया. नंबर 7, ये किताब किसने खरीदी. नंबर 8, सवाल का जवाब तहरीर कीजिए. नंबर 9, डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया. नंबर 10, अब्बू इतवार को अखबार लाए. ठीक है. You have to do by yourself. Page number 6 and 7. Now see the page number 8, तफहीम. तफहीम कहते हैं comprehension को. You can see on the slide, जो अपने मोबाइल की या कंप्यूटर की स्लाइड पे देखिए, लिखा हुआ है नर्दबान उर्दू बुक पेज नंबर 8. तफहीम, comprehension, नमक और रुई. I'm going to tell you about, read the story in front of you. और आप लोगों को इसके आंसर्स कर. बुक से पढ़ती हूँ मैं स्टोरी. यू हैव टू एंजॉय. ओके. एक काहिल गधे पर इसका गरीब मालिक रोज नमक की बोरियां लाद कर बाजार ले जाया करता था. एक
जो इंसान है पिक्चर में आप देख रहे होंगे, उसके पास एक गधा है जिस पे वो नमक की बोरियां डेली उठाकर शहर तक लेके जाया जाता था, बाजार तक लेके जाता था और उसे बेचता था। रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी, मतलब कि एक नदी नाला, जो नहर टाइप चीज होती है जिसमें पानी होता है, उसे कहते हैं नदी। एक दिन गधे का पांव फिसला और वो नदी में जा गिरा। किसका पांव फिसला? याद रखिएगा, गधे का। नदी में गिरने के बायस इसकी पुश्त पर लदी हुई नमक की बोरियां गीली हो गई। गधे की जो बैक थी, पुश्त कहते हैं बैक को, उस पर जो बोरियां थी वो नीचे गिरी पानी में और सारा का सारा नमक जो है वो डिसॉल्व हो गया। जब गधे के मालिक ने उसे खड़ा किया तो उसे अपना वजन कम महसूस हुआ, क्यों ना कि नमक पानी में घुल चुका था। कीप इन योर माइंड कि सॉल्ट जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। I already explained in science experiment grade 4 class. Okay? मैं ये चीज आपको डिसॉल्विंग पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ साइंस की क्लास में। अच्छा जी, जब गधे ने के मालिक ने उसे खड़ा किया तो उसे अपना वजन कम महसूस हुआ, क्यों ना कि पानी नमक में घुल चुका था। इसे ये तरीका जानकर बहुत खुशी हुई। फिर तो वो अक्सर ऐसा ही करने लगा। जब भी वो नमक की बोरियां लादे हुए नदी के पास से गुजरता तो जानबूझकर पानी में गिर जाता और सारा नमक जाया हो जाता। आखिर गधे का मालिक समझ गया कि गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अब उसे सबक सिखाना जरूरी था। सबक किसको सिखाना जरूरी था? गधे को, ठीक है, डोंकी को। सबक सिखा कौन रहा है? उसका मालिक। चुनाचा एक दिन इसने बोरियों में नमक के बजाय रुई भरी और गधे पर लाद दी। अब कुछ दिनों के बाद जब मालिक को यह अंदाजा हो गया कि गधा जो है वो मुझे डिच कर रहा है, तो उसने क्या किया कि नमक की जगह बोरियों में रुई डाल दी। हस्बे मामूल गधा जब नदी के पास पहुंचा तो उसने खुद को पानी में गिरा दिया। अब गधे ने उठकर चलने की कोशिश की तो उससे उठा ही नहीं गया। नमक तो डिसॉल्व हो जाता था, अब क्यों नहीं उठा जा रहा है? रुई तो इतनी हल्की सी होती है। अब गधे ने उठकर चलने की कोशिश की तो उसे उठा ही नहीं जा रहा था, क्यों ना कि रुई ने पानी जज्ब कर लिया था। वंस अगेन इट्स अ पॉइंट, नमक वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और रुई, कॉटन जो होती है, जितना भी वाटर था होता है, जितना उसमें कैपेसिटी होती है, उसे खुद में एब्जॉर्ब कर लेती है। रुई ने, कॉटन ने बहुत सारे पानी को खुद में एब्जॉर्ब कर लिया। रुई ने पानी भर लिया। रुई गीली होने के बाद पहले से कई ज्यादा भारी हो गई थी। उस दिन गधे ने बाजार तक का सफर बहुत मुश्किल से किया और आइंदा ऐसी हरकत से तौबा कर। ठीक है, कितने मजे की सिंपल सी स्टोरी थी कि एक अच्छा सा इंसान था, उसके पास एक गधा था। वो बाजार जाता था अपना नमक लेकर और वहां जाके सेल कर देता था, बेचता था नमक को। एक दिन गधा जो था उसका नदी पार कर रहा था तो पानी में गिर गया। जब पानी से मालिक ने उसे उठाया गधे को, तो गधे ने बहुत बेटर फील किया, इसलिए कि सारा का सारा नमक तो डिसॉल्व हो गया था, पानी में बह गया था। अब गधे ने इसे अपना हैबिचुअल बना लिया इसको कि मैं तो इतना वजन उठा के गधों की तरह जा रहा होता हूँ, तो मैं तो सारा का सारा नमक क्यों कर लूंगा। वो चलाकियां करने लगा, वो मालिक को परेशान करने लगा। अब मालिक भी मालिक होता है, उसे अंदाजा हो गया ये तो मुझे डिच कर रहा है, ये तो मेरे साथ ज्यादती कर रहा है। अब उसने क्या किया कि एक दिन नमक की जगह रुई रख दी उसमें बोरियों में, और जब गधा पानी में गिरा तो रुई ने सारा का सारा पानी भर लिया। अब तो वो परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, अब तो उसे उठा भी ना जाए, चला भी ना जाए। तो फिर उसने अपनी इस गलती से तौबा कर ली कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, अपने मालिक को परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, ये थी हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्टोरी, छोटी सी, जिसके आपको आंसर्स लिखने हैं। नाउ सी द स्लाइड, नर्दबान उर्दू बुक पेज नंबर 9। इट्स योर होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन है, गधे का मालिक उस पर क्या लादा करता था? आंसर्स देखिए, मैं खुद आपको रिपीट कर रही हूँ, बता रही हूँ, लिखने आप लोगों।
गधे का मालिक उस पर नमक लादा करता था। पानी में गिरने के बाद नमक की बोरियों का वजन कम क्यों हो जाता था? इसलिए कम हो जाता था कि पानी नमक जो है वो पानी में वाटर में डिसॉल्व हो जाता था, घुल जाता था। गधे के मालिक ने उसे सबक सिखाने के लिए क्या किया? गधे के मालिक ने गधे को सबक सिखाने के लिए एक दिन नमक की जगह रुई की बोरियां भर। पानी में गिरने के बाद रुई की बोरियां वजनी क्यों हो गई थी? इसलिए हो गई थी कि रुई ने वाटर पानी एब्जॉर्ब कर लिया था। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं। इसके बाद आप फिर देखिएगा बुक पेज नंबर 9। बुक पेज नंबर 9 पे ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन यू हैव टू डू, आपने ये करने होंगे। उसके बाद बे एक्सरसाइज है, सिफ्त और मौसूफ में आपको एक्सप्लेन करूंगी, देन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, इसे अभी छोड़ दीजिएगा। जीम एक्सरसाइज देखिए, दर्जा झेल अल्फाज का अंग्रेजी में तर्जुमा लिखिए। जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनकी मीनिंग्स आपको इंग्लिश में लिखनी है। ठीक है, उर्दू और इंग्लिश सामने लिखा हुआ है। नमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्ट। वजन वेट, पुश्त बैक, जज्ब एब्सॉर्ब, फिसलना स्लिप, मामूल रूटीन। These words I repeat in front of you। एक दफा मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, एक दफा मैं फिर रिपीट कर रही हूँ और आप लोगों को ये लिखना है। नमक सॉल्ट, वजन वेट, पुश्त बैक, जज्ब एब्सॉर्ब, फिसलना स्लिप, मामूल रूटीन। अब आपको करना क्या है? काशिफ उर्दू की एक्सरसाइजेस करनी है, क्वेश्चन आंसर्स, ये तफहीम जो कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको एक्सप्लेन की है इसके 4 क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज अलग और जीम दे आपने छोड़ दी। क्लियर? थिंग्स आर क्लियर? चीजें क्लियर है आप लोगों को? यस। दैट्स ग्रेट। यू वांट टू आस्क समथिंग? कुछ पूछना है आप लोगों को? मिस जी ये इंग्लिश में लिखना है? जी सामने मुझे इंग्लिश में लिखना है। जी 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 इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में लिखना है ऐसे है, नमक है तो आपको सामने सॉल्ट लिखना है, SALT सॉल्ट। पुश्त बैक, BACK बैक। फिसलना स्लिप, SLEEP स्लिप। इंग्लिश में स्पेल करके लिखना है। क्लियर? तफहीम अच्छी थी, कॉम्प्रिहेंशन अच्छी इजी थी, बिल्कुल उसे कीजिएगा। वर्ड स्पिनिंग आपको दिए हैं वो भी करेंगे। अब हमारी क्लास होगी, आई थिंक कल हमारी क्लास है उर्दू की कि नहीं? आई डोंट रिमेम्बर द टाइम टेबल, मुझे टाइम टेबल याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर होगी क्लास तो हम क्लास लेंगे, अदरवाइज इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन फ्राइडे। हम फ्राइडे को स्कूल में मिल रहे हैं। आप साइंस का, उर्दू का, इंग्लिश, मैथ्स जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं वो सब काम करके कॉपीज लेकर आएंगे और स्कूल में टीचर्स होंगी उन्हें चेक करवाएंगे। ओके? एनी कंफ्यूजन? कुछ और कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर? चेक करवाने का खाना आएगा? चेक करवाने आप अपने पेरेंट्स को भेज दीजिएगा, मामा को भेज दीजिएगा, वो कॉपीज चेक करवा लेंगे और आप लोग अपनी क्लासेस अटेंड कीजिएगा। फ्राइडे को हमारी ऑनलाइन क्लास भी तो है, हमारा सिर्फ सैटरडे और संडे ऑफ होगा। मंडे, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday are working days for science, English, maths and Urdu for core subjects. Yes. Clear? जितना काम ऑनलाइन क्लास में वो वही भेजनी है ना बुक्स? जी जी, जो रिटन काम हुआ है जो आपको चेक करवाना है ऑब्वियसली वो भेजेंगे ना। किस किस्म का क्वेश्चन किया है ऑब्वियसली वही काम करेंगे। जस्ट वेट, मैं जरा स्क्रीनशॉट ले लूं टू मेंटेन योर अटेंडेंस। मिस जी मिस सुन रही थी क्या? पूछिए। यार लगता है तो पूछना। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। जी फरदीन कॉपी में नहीं करना।